السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی احمد رضا صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی فرمائیں۔ حضرت یہ حاجی ہمارے ایک مریض حج کرنے گئے ہیں، تو وہ جماعت سے نماز تو پڑھ سکتے ہیں، میں نے اجازت دے دی کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو۔ وہاں جماعت سے نماز پڑھنا ہے؟ ہاں میں نے اجازت دے دی کہ بھائی اب ایسے کسی کے بارے میں بدعقیدگی بدگمانی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ اطہر حسین قادری بول رہا ہوں۔ آ؟ اطہر حسین قادری بول رہا ہوں، میں مدھیہ پردیش۔ آ؟ کہاں اطہر سے؟ حسین قادری، اطہر حسین قادری، کہاں سے؟ کہاں سے؟ مدھیہ پردیش، بھوپال کے پاس۔ اچھا، تو آپ نے اجازت دے دی ہے کہ جو ہے وہاں جا کر کے کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ اب بدگمانی منع ہے، اسی میں کیا کہ جب کسی کے بارے میں معلومات نہیں تو ایسے بدگمانی کرنا سمجھنا اچھا نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہاں کی حکومت نجدی ہے؟ اب حکومت تو جیسے اجمیر شریف میں شیعوں کی ہے، لیکن امام تو سنی رکھے نا تینوں میں، اجمیر لیکن شریف میں۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہ وہاں کی حکومت وہ تو نہیں کی ہے، لیکن اب وہ اللہ رسول کو تو خیر مانتے ہی ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں۔ پوری بات تو سنیے، اور اسے تو اللہ رسول اور صحابہ کو شیعہ بھی مانتے ہیں، قادیانی بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کو کم مانتے شیعہ، مانتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہ شیعہ کی کئی کیٹیگری ہے؟ 32 کیٹیگری ہیں بڑے پیر صاحب میں۔ ہاں، تو کئی کیٹیگری ہے کہ نہیں؟ سب نہیں مانتے، کچھ ایک کیٹیگری مانتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا آپ ان کے پیچھے جائز کر دیں گے؟ اب جیسے ظاہر میں ایسی کوئی بات نظر آئے تو قادیانی یہاں تک کہ اپنے آپ کو حنفی بھی مانتے ہیں۔ اچھا، ہاں، اب میں نے تو اللہ کے وہ ہے نا شعر، خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں ہیں، یعنی خالق کل نے مالک کل بنا دیا۔ ہاں، اس حساب سے میں نے ثابت کر دیا کہ مسجد نبوی کا امام سنی ہے، مسلمان ہے، حالت نے کہا ہے۔ یہ تو آپ ایسے ثابت کرنا چلیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ثابت کر جائیں گے۔ تو وہیں سے تو فتویٰ لائے تھے، فتاوی حسام الحرم میں ایسی سنی ہے سب اپنے۔ آپ کو تو یہی، آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس وقت سنیوں کی حکومت تھی، وہاں کے سب سنی تھے؟ تو سنی اگر معلوم نہیں بھی رہے تو مسلمان تو مانا جائے گا نا ایسے۔ پھر ایسے آپ دیکھیے، آپ عالم ہیں کہ نہیں عالم ہیں؟ الحمدللہ ندوۃ العلماء اشاق سے پڑھا ہوں بھوپال۔ اچھا، وہیں سے پڑھے ہیں تو آپ کو، ہاں ٹھیک ہے، کم سے کم آپ کو کسی کے بارے میں جانکاری ضروری ہے، بن جانکاری کے آپ کسی کے اوپر ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کریے وہ کریے۔ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سعودی میں حکومتی سطح پر حکومتی کام آل سعود دیکھتے ہیں، ہاں، اور مذہبی امور جو ہوتے ہیں وہ آل شیخ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ اور آل شیخ کون ہے؟ آل شیخ تو وہ شاہی نظام والے ہیں، آل سعود ابن عبد الوہاب کے نسل سے۔ نہیں، آل شیخ کون ہے؟ آل شیخ یہی آل سعود میں آتے ہیں۔ آل سعود نہیں ہے، وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی والے آل شیخ ہیں وہ۔ اچھا، وہ ہیں۔ تو اور کون ہے؟ تو اسی وجہ سے جتنے متوا ہیں، ہاں، متوا یہ وہی ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتے ہیں۔ جیسے حضرت آپ نے جمدہ شاہی کا تو معلوم ہوگا نا، جمدہ شاہی علیمیہ جو ہے۔ ہاں بولیے۔ وہاں پر حضرت مولانا معراج بغدادی، انوار بغدادی صاحب پر کھلے عام لڑکوں نے الزام لگائے، ابھی لیٹسٹ بات ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے، 5 سال پرانی، کہ انہوں نے قرآن کی آیت بدل دی، قرآن وہ یوٹیوب میں ڈلا ہوا ہے، قرآن کی آیت بدل دی، قرآن کی آیت بدل دی، جبکہ وہ بالکل غلط جھوٹ بات نکلی۔ یہ تو اپنے زمانے کی بات ہے نا صاحب، ابھی موجود ہے مولانا انوار صاحب بغدادی۔ کہاں کی بات اب آپ کہاں جمدہ شاہی کی جب اتنی بڑی بات جھوٹ ہو سکتی ہے تو وہاں کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں آپ؟ کہاں کی بات کہاں سیٹ کر رہے ہیں؟ تعلیمیات تو اسٹرائک ہو گئی تھی، بند بھی ہو گئی تعلیمیات۔ ارے وہ ہمارے یہاں کی بات ہم خوب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ جھوٹی اڑائی تھی نا حضرت مولانا معراج صاحب کے خلاف، انوار صاحب کے خلاف۔ دیکھیے، وہ انہوں نے وہ قرآن کی آیت بتائی تھی، وہ اللہ فرماتا ہے سب میں جانتا ہوں اس کے بارے میں، آپ ذرا یہ سوچیں۔ جھوٹی اڑائی تھی کہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کی آیت بدلی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ پہلے سمجھے۔ اور آج وہی شخص جس کے متعلق اڑائی تھی وہ وہیں موجود ہیں، حضرت مولانا انوار صاحب بغدادی وہیں موجود ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کچھ یہ بتائے، ایک میں آپ کے بارے میں کچھ کہوں جی، وہ ایک الگ بات ہے، اور ایک یہ کہ آپ کے اقوال و اعمال و افعال سے خود ہی ظاہر ہو، وہ الگ بات ہے۔ ہاں، وہی تو۔ اب ان کے بارے میں کوئی کنفرم ثبوت ہے نہیں کہ قرآن کو نہیں مانتے ہوں، یا حدیث کو نہیں مانتے ہوں، یا صحابہ کو نہیں مانتے ہوں، عرب والے یا اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے ہوں۔
ये अल्लाह के रसूल के रोजे का शरीफ का अदब नहीं करते हो, अदब भी बहुत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे शरीफ का वो लोग। अच्छा ठीक है, तो जा करके सलाम पढ़ लीजिए, ये भी देखिए क्या करेंगे। हजरत अजमेर शरीफ में नहीं हाजिरी देने देते सब मुजाविर, जब ज्यादा भीड़ होती है वो लोग भगाते हैं, हम खुद जाते हैं अजमेर शरीफ। जाहिर सी बात है, जो जब भीड़ मुजाविरीन ज्यादा है होती है तो मुजाविर धक्के देते हैं, निकलो बाहर, बाहर निकलो, सबको मौका मिल जाए। जो मुजाविरीन हैं हाँ। उस किस्म के, वो तो पहले से अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। नहीं, वो तो फिर भीड़ की हो जाते हैं कि सबको मौका मिल जाए, अजमेर शरीफ आए, सब लोगों को हाजिरी का मौका मिल जाए। अरे वो छोड़िए 2 लाख उनकी आदमी में बात। जब ये आलम होता है, देखिए, 50 लाख आदमी होता है, सबको सलाम पढ़ने देंगे इतना देर तक। सुनिए, उस पे बात देखिए, दोनों अलग अलग मैटर है, अजमेर शरीफ और फिर वहाँ पर जाकर के उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ना, ये दोनों अलग अलग मैटर। आप किसके मुरीद हैं? मैं सूफी निजामुद्दीन रहमा का मुरीद हूँ। हजरत सूफी निजामुद्दीन साहब मरडोबा वाले, जब उनसे लोग सबसे सब नहीं मिल पाते होंगे, अरे हजरत के वहाँ मत जाओ, अभी मत जाओ। जब चंद मुरीदों से लोग नहीं मिलने देते हैं तो फिर इतनी भीड़ में 50 लाख आदमियों को कैसे सबको सलातो सलाम खड़े होकर एकदम पढ़ लेने देंगे? बस सलातो सलाम पढ़ने देते हो? सलातो सलाम से मना नहीं करते, एक बार सलाम पढ़ लो, आप बाद में दूर जाके पढ़ो। वो छोड़ दीजिए बात, पहले ये बात सुनिए। हजरत आपके तीनों मुर्शिद पे भी तो हजरत मौलाना इदरीस साहब बस्तवी ने इल्जाम लगाया था कि देवबंदी के घर मिले थे, ये जब गायब हो गए थे सीवान में, देवबंदी के घर मिले थे, बात पक्की थी, देवबंदी के घर में रुके हुए थे वहाँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी कहे किसी के बारे में वो अलग बात है, और एक आदमी के आपके पीर के बारे में खबर सही उड़ी थी कि नहीं? हजरत मौलाना इदरीस बस्तवी ने उड़ाई थी। ये तो बहरहाल मैंने पहली मरतबा सुना है आपकी जबानी। नहीं, बस्तवी साहब ने बहुत शोर मचाया था इस बात पे कि कौन इदरीस बस्तवी ने ये बात को लेकर के, ये जब मफकूद खबर हो गए थे हजरत सूफी निजामुद्दीन साहब, तो एक देवबंदी के घर में रुके हुए थे बिहार में, सीवान में। कौन किसने उड़ाई थी वो बात? हजरत मौलाना इदरीस बस्तवी साहब ने। ये बात तो मशहूर है ना, गायब हो गए थे ट्रेन में से। वो तो गायब, वो तो मालूम ही है, लेकिन ये आप लेकिन गायब होने के बाद ये देवबंदी के घर में ही थे। छोड़िए वो सब बात, क्या हुआ क्या नहीं। आप सिर्फ एक पहले बात पे कि हरमैन में जो इमाम है उनके पीछे इक्तिदा करने का आपने हुक्म दे दिया है। तो कुरान की आयत कोई रोशनी में दिया है। अब मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात आप सुनिए। वहाँ का जो मरकजी दारुल इफ्ता है, जी जी, और जो मुतव्वों का जैसे यूनिवर्सिटी मदीना यूनिवर्सिटी है, हाँ हाँ हाँ, और जो वहाँ पर घूमने वाले मुतव्वा हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के भी कुछ को जो है तनख्वाह दे करके वो लाल रुमाल वाला है टाइप का। हाँ, तो कई हैं। अब आप बताएं कि वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं? हज़रत वो तो एक निजाम दिखते हैं कि कोई निजाम देखते हैं। अगर वो जो कुछ खुराफात कर रहे हैं वो निजाम देख रहे हैं कि जो है कि लेडीज मुकाबले 50 भेजूंगा जो मज़ारों पे हो रहे हैं औलिया अल्लाह के जवान लड़कियों के लेडीज मुकाबले। वो सिर्फ बरेली हज़रात के इलाकों में हो रहे हैं, देवबंदी नहीं करा रहा है, सिर्फ बरेली इलाकों में। फिर आप कह रहे हैं 50 में आपको मुकाबले भेजूंगा, जवान लड़की जवान लड़का, और गंदी शायरी करना, गंदी। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक बात पे रहिए, इस पे बात करना होगा तो अलग बात कीजिएगा। तो वहाँ तो तबले बजेंगे, ढोल बाजिए बजेंगे, सारंगी बजेंगे अरब में। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, जाएगा वहाँ जाके साहबा किराम के मज़ारों पे। फिर अजीब हाल है। मैं कह रहा हूँ उस पे बात करना वो अलग मैटर है। आप अभी इस पे बात कर रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? फिर आप कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये दूसरा मैटर है, इस पे बात करना होगा, अलग से इस पे बात होगी ना। तो जब ढील हिंदुस्तान में आलिम 10 लाख मौजूद है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये सख्त निजाम रखते हैं कि सारंगी नहीं बज पाए, तबले न बज पाए, ढोल न बज पाए, कोई सिगरेट न पीने लग जाए। नहीं, तो ये स्टेज पे सिगरेट पी रहा है वो शरीफ परवाज कानपुरी, मैं क्या कह रहा हूँ, लड़की को पकड़ रहा है स्टेज के ऊपर सबके सामने। आप तो बिल्कुल जो है पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले जाके पटक रहे हैं क्या। देखिए, किसी का अमल वो अपना अमल है, जाती अमल है, वो नाजायज और हराम होगा तो क्या मतलब वो शरीयत का कानून बन जाएगा। वो तो आलिम क्या कर रहा है हजरत, 10 लाख आलिम है, सिर्फ सुन्नी वहाबी करेंगे हजरत जी खाली। बिल्कुल सुन्नी वहाबी पहले करेंगे, उसके बाद अमाल की बात होगी, उस पर भी बात होगी, दोनों पे बात होगी, पहले अकायद की बात है। तो हजरत वो कौन से अकायद हैं अरब वालों के, जो अभी इमाम काबा है जिनके अकायद ऐसे हो के जो हमें माने के हाँ कुफरी अकायद। आपको कुछ मालूम हो तो बताइए। आपको यही नहीं मालूम है? पक्का सबूत है कि उनके कुफरी पक्का सबूत है भाई, पक्का सबूत है। क्या वो हिफ्ज़ुल ईमान पढ़ते हैं, क्या वो तकरीर ईमान पढ़ते हैं, क्या वो फतवा पढ़ते हैं? वो प्रमोटर है उनके, वो प्रमोटर है। वो उर्दू की किताबें क्यों पढ़ेंगे, इन बातों को क्यों पढ़ेंगे? आपको पता होना चाहिए कि ये सब प्रमोटर है उसके, ये सारी अरबिक में किताबें छपवाते हैं, बंटवाते हैं। आपको पता है कि नहीं?
कंजुल ईमान क्यों बैन किया गया है अरब में? अच्छा, कंजुल ईमान बैन किए गए हैं। हाँ, आप कहाँ सो रहे हैं? हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह तो अरब के खलीफा थे, वहीं से रहे 40 साल मदीना शरीफ में, तो उन्होंने इजाजत क्यों नहीं दिलवाई कंजुल ईमान पढ़ने की? अजीब हाल है। एक आदमी, आप एक तन्हा आदमी है, आपके ऊपर ये है शरीयत ने जो आपको मुकल्लफ बनाया, आपकी उसात पर बनाया है। हाँ, आप अपनी कोशिश कर सकते हैं, कह सकते हैं, ये इस किस्म की बात अलग होती है। और ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा आज की बात नहीं, वो पहले के। हज़रत खुतबात मुहर्रम पढ़िए, मुफ्ती ज़ियाउद्दीन अमजदी ने लिखा है कंजुल ईमान की फहरिस्त में सैकड़ों गलतियां थी, उन्होंने लिखा है 6 बार की इस्लाह के बाद 32 रह गई। आप पढ़ो, खुतबात मुहर्रम में लिखा है। फिर कहाँ ले गए आप? तो जब वो अपने ही आलिम खुद मान रहा है कि इसमें बहुत गलतियां थी फहरिस्त में, तो अरब वाले कैसे उसको मान लेंगे? आप पढ़ो ना खुतबात मुहर्रम। आप तो जो है पता नहीं कहाँ देख लो, मैं साफ लिखा है कि इसमें मैंने इस्लाह की 6 बार, उसके बावजूद 32 गलतियां रह गई। 32 मुझको पता है, कोटा जयपुर हर जगह मिल जाएगी। फिर आप कह रहा हूँ ये सब देखिए, ये अलग गलतियों वाली फहरिस्त को अरब वाले मानेंगे, तस्लीम करेंगे? अच्छा ठीक है, आप सही हो गई। आलिम खुद तस्लीम कर रहा है कि बहुत गलती है इसमें। सुनिए पहले, अब सुनो पहले, आप ये बताइए अब सही हो गई, अब वो तस्लीम कर लेंगे? हज़रत मौलाना अब्दुल मुबीन नोमानी साहब ने सही किया उसको। मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये सिर्फ आप बताए कि अब तो सही हो गई, अब मान लेंगे, क्यों नहीं मान रहे? 100 साल बाद सही किया तो क्या किया? 100 साल से तो गड़बड़ छप रहा था। फिर अजीब हाल है, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बात की बात है। अब सही हो गई, अब मानेंगे? नहीं, ये बताइए 100 साल से गलत छप रहा था, 100 साल से आपको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, और सुन लीजिए, अभी पाकिस्तान में इमाम हरम को वहाबियों ने बुलाया था। अच्छा, इत्तेफाक से उसमें एक नाबीना कोई शायर था, वो उसी के सामने पढ़ रहा था अरबी में नात। अच्छा अच्छा। और वो ऐसी नात थी जिसमें नबी पाक के इख्तियारात वगैरह का बयान था। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा रहा था बैठे बैठे। वीडियो मौजूद। कौन सा शेर था? शेर भी तो मालूम है, बदगुमानी कहते हैं। फिर आज यूट्यूब पे मौजूद, आप निकाल करके देख लीजिए। जैसे अलब के सामने भी एक ने शेर पढ़ा था कि मैं या रसूलल्लाह आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत में मेरी नींद उड़ गई है, मैं खाना पीना छोड़ दिया। तो अल्लाह ने कहा कि शायर साहब, अगर वाकई आप सच्चे हो तो फिर तो वली हो, और अगर सच्चे नहीं हो तो फिर आप अल्लाह के रसूल की बारगाह में झूठ बोल रहे हो। यानी जो बात आप में पाई जाती है, जो अशार में आप कह रहे हो कि मेरी नींद उड़ गई है, मेरा खाना पीना छूट गया, फिर तो आप औलिया में से हो। वो अरबी पे पढ़ रहा था, अरबी में पढ़ रहा था। कोई शेर में क्या मालूम क्या शेर था क्या नहीं था? आपको मालूम है कौन सा शेर था? वो अरबी में शेर तो था। आप बताओ तो सही ना, वैसे हवाई फायरिंग के साथ वो शेर पढ़ रहा था, कौन सा शेर था मालूम तो होना चाहिए। मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूँ, क्या आप हवाई फायरिंग कर रहे हैं? तो हजरत शेर तो बताओ ना, अब ये शेर था। मैं भेज देता हूँ आपको ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं? हजरत साहब हवाई फायरिंग नहीं होना चाहिए। मैं हवाई फायरिंग आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। आप हवाई फायरिंग घूम घूम कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं। अब हजरत तब मैं क्या करूं? मैंने तो इजाजत दे दी मरीज को कि जो भी है कि नमाज पढ़ लिया करो, जमात से 27 लाख नमाजों का सवाब मिलेगा। एक नमाज का जमात से 27 लाख है, अकेले पढ़ने में 1 लाख मिलेगा। कलवर कह दीजिएगा कि शिया के पीछे जाकर के पढ़ लेना, वहाँ भी बहुत अच्छा नमाज अभी तो मिल जाएगा। कादियानियों के पीछे पढ़ लेना, वहाँ भी बहुत अच्छा नमाज मिल जाएगा। पढ़ सकते हैं। सड़ा देवबंदी जो है, जो अशरफ अली थानवी को अपना अब्बा अम्मा कुल मानता हो और उसके अकायद को जानो दिल से मानता हो, उसके पीछे भी कह दीजिएगा पढ़ लेंगे, और ना होगा तो निकाह भी करवा लेंगे अपने घर में। कौन से ऐसे तर्जुमे किए हैं देवबंद वालों ने जिस पर कुफ्र के फतवे लगाए हैं लोगों ने? कुफ्र के फतवे आला हजरत ने उनके चारों जो चार थे, उनके कुफरिया इबारात पर जो है फतवा तहरीर फरमा उलमा हरमैन तैयबैन ने उसकी तस्दीक की। जब वो मुसलमान थे, अब मुसलमान नहीं है वहाँ के लोग। कौन? यानी अब अरब वाले आपको तो यही नहीं मालूम है कि कब वहाँ की हुकूमत किसकी थी और अब किसकी है। पहले के लोग कैसे थे, अब कैसे? काफिर आ गए क्या? बुतों की पूजा हो रही है क्या? घंटे बज रहे हैं वहाँ पर? क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या गिरजा बन गए? अच्छा, तो स्मृति रानी गई थी, तो स्मृति रानी पर इतना जुर्म मचाया कि काफिरा गई। तो जब तुम आगे पूरे इमामों को ही काफिर मान रहे हो, तो एक काफिरा चली गई तो क्या हुआ? ये बताइए, जब ये मान लो कि काबे में इमामी नमाज काफिर पढ़ा रहा है, बरेली वाले मान रहे हैं, तो अगर स्मृति चली गई तो क्या हुआ? ये बताइए आप, अगर कोई बुत पूजेगा तभी काफिर होगा, उसके अलावा काफिर नहीं हो सकता है। ये बताइए कि तर्जुमे से कौन से कुफरियात? मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बुत पूजेगा तभी काफिर होगा। कुफरियात तो बताएंगे इमामों के, ये कुफ्र है।
पहले अशरफ अली थानवी पे बात कीजिए। अच्छा, क्या है उनका कुफर? कुफर जो उन्होंने बकवास की है वो किताबों में लिखा है, उस पर बात कीजिए पहले। नहीं, उनके बड़े भाई ने जो लिखा है वो तो मैं नहीं मानता। एक बात उन्होंने लिखी, नहीं, बड़े भाई ने एक बात तो सुनने, अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी, इन हजरात ने जो लिखा पहले उस पर बात की। अच्छा, बात की। हाँ, वो तो जो गलतियां की हैं उससे तो उन्होंने तौबा कर ली थी। कौन कह दिया तौबा? कौन कहा तौबा कर लिया? साहब ने तौबा कर ली थी कि कहाँ लिखा है? तो ये इस्माइल देलवी की तौबा कहा है, जो आलात ने कहा मैं इसे काफिर नहीं कहूंगा। इस्माइल तौबा की तौबा मुझसे चुकी, वो तौबा कहाँ है साहब? वो तौबा कहाँ है? ये आपकी हवाई फायरिंग है, ये आपकी हवाई फायरिंग है। कहाँ तौबा की है? आला ने कहा कि हम तो इनकी तौबा आ चुकी है मशहूर जराए से, हम इनको काफिर। आला हजरत ने ये कहाँ लिखा है कि मशहूर जराए से उनकी तौबा आ चुकी है? किस जगह लिखा? मशहूर हो चुकी है। आला हजरत ने कहाँ कहा? नहीं कहा, वही तो पूछ रहा हूँ। तो क्या कहा है? इस्माइल देलवी को काफिर माना है क्या? बिल्कुल काफिर माना है। काफिर ही नहीं बल्कि उसके कुफ्र में शक करे तो खुद काफिर है। इस्माइल देलवी के? हाँ, इस्माइल देलवी, अशरफ अली थानवी की मैं बात कर रहा हूँ, आप इस्माइल देलवी की बात ला रहे हैं। नहीं, इस्माइल देलवी की बात कर रहा हूँ मैं इन हजरात की बात कर रहा हूँ। अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी, इन हजरात की मैं बात कर रहा हूँ। वो किसने फतवे दिए थे? मन कशका मन शकरा फी कुफरी वाजाबी फकत शकर। मन शकरा फी कुफरी वाजाबी फकत शकर। मन शकरा नहीं है, मन शक्का है। अरे मन शक्का फी कुफरी व अजाब ही। हाँ, मतलब अजाब में शक करे वो भी काफिर। हाँ बिल्कुल। तो इसका 30-25 करोड़ मुसलमान काफिर हो जाएंगे देवबंदी, जो 25-30 करोड़ हैं दुनिया में। बिल्कुल जो उनके अकायद को जानते हुए, अच्छा जानते जो हुए, उनके अकायद को जानते हुए उसके बावजूद उनको मुसलमान समझता है तो बिल्कुल उसका हुक्म वही होगा। तब काफिर है। वैसे जानता हुआ नहीं है तो मुसलमान है। तो बिल्कुल देखिए, शरीयत का हुक्म अगर नहीं जानता तो मुसलमान है ना। आप भी मान रहे हैं कि हाँ अगर जानते ऐसा माने तो काफिर है, नहीं जानता तो मुसलमान है। आप क्या मानते हैं? आप भी तो कह रहे हैं कि जो जानते हुए उन अकायद को जानते हुए, मैं पूछ रहा हूँ उन अकायद को जानते हुए ऐसा माने तो काफिर है, नहीं तो काफिर नहीं मुसलमान। आप क्या मानते हैं? हम तो, आप खुद कह रहे हैं ना, आप भी तो मुसलमान मान रहे हैं कि जो अकायद को जानते हुए मुसलमान माने तो काफिर है, नहीं तो मुसलमान। आप उनके अकायद को नहीं जानते हैं? क्या हर देवबंदी उन तकरीर ईमान को पढ़ता है या हर घर में मिल जाती है तकरीर ईमान? ये मैं सिर्फ अभी दूसरी बात छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 4.5 लाख की आबादी है, 1200 मस्जिद है भोपाल में, 12 किताबें आप तकरीर ईमान सिरात में निकाल दो, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। वो छोड़ दीजिए, आप क्या मानते हैं? 12 किताबें आप भोपाल से निकाल दो, तकरीर ईमान बराबर समझ में आ रहा है। आप क्या मानते हैं? सिरात मुस्तकीम पूरे भोपाल में से 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ। आज 6 जून है, चंद दिन नहीं, आप बताइए आप क्या मानते हैं उनको? 12 किताब निकालना, कितनी बड़ी आबादी ले लीजिए, वरना कहीं इंतकाल ना हो जाए आपका। हजरत जब मैं क्या कह रहा हूँ, भोपाल वाले छोड़िए, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? हम तो देखिए देवबंद वाले हैं, हदीस हैं, बरेलवी हैं, लेकिन मुसलमान मानते हैं कि जब तक किसी का कुफ्र कन्फर्म ना हो। पूछ रहा हूँ आप क्या मानते हैं? उनका अकीदा ये है कि रहमतुल्लाह अलैह को हम वली मानते हैं। हज़रत मंसूर अल्लाह उनके मुंह से अनल हक निकला था, लेकिन कुफ्र का फतवा लगाया था उन पर आलिमों ने, फतवा लगाया तो कुफ्र का। लेकिन देवबंदी वली मानते हैं, बरेलवी वली मानते हैं, आप भी वली मानते हो मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ आप क्या वली नहीं मानते हज़रत मंसूर अल्लाह को? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानवी, आपको शकरा और शक्का में फर्क नहीं मानते तो क्या पढ़े हैं आप? शकरा निकल जाता है। नहीं, मुझको तो लग रहा है शुभा हो रहा है कि आप पढ़े हैं, कि वैसे ही लग रहा है कि क्लास कूद करके पास हो गए। शक्का फी कुफ्रे ही वो अजाब ही फकत कफरा। सुनिए, फतवा क्या तो मंसूर अल्लाह से नहीं बताया था उस जमाने के? आप सिर्फ एक बात बताइए, तीसरी बात नहीं। आप इन हजरात को क्या मानते हैं जिन्होंने लिखा है नबी पाक मरकर मिट्टी में मिल गए? माज़अल्लाह, ऐसा लिखने वाला तो काफिर हो जाएगा। ऐसा लिखने वाला जिन्होंने लिखा कि नबी पाक का लिखा हुआ है हमें तो पता ही नहीं। ऐसा लिखने वाला काफिर है जो आप बता रहे हो, जिस अंदाज में बता रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ, तमाम अंबिया किराम जिंदा हैं अपनी कब्रों में। देवबंद वालों का अकीदा है, उलमाए देवबंद का यही अकीदा है कि तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है। हमारे नबी नहीं बल्कि तमाम अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा। और सुनिए, जिन्होंने रखे वो उलमाए देवबंद के नजदीक मुसलमान नहीं। जिन्होंने ये लिखा है कि नबी पाक का इल्म जानवर और पागल की तरह है। किसने रुजू किया? और जो अपने बाल को बाल मुबारक के बटवा कर नबी से बराबरी करे,
मैं जो कह रहा जो हूँ वो अपने आप बाल को इसका बाल मुबारक कहकर नबी से बराबरी करे, उसके बारे वो में क्या देखिए हुक्म वो है? अलग मैटर है, पहले अपना अच्छा मामला आप अपना फाइनल है तो कीजिए। चलो छोड़ो, आला हज़रत को मानता है, छोड़ो। पहले अपना वो मैटर तो आप बाल फाइनल नहीं, अपना कीजिए, उसके कुर्ता भी बाद बांटे, अपना पजामा बांटे, वो अपने क्या बदन के बांटे बाल क्या ना बांटे, बांटे उस पे बात हैं? बाद में हो, कि और न पहले जाने आप क्या क्या बांट बताइए रहा है, कि वो इन तो क्या क्या हजरात के बांट रहा है, बारे में आपका पाकिस्तान क्या वाला, अकीदा कराची है। वाला। अब आपका अपने चलिए देखिए छोड़ो, वो अपना है, इलियास काजी आला फिर को आप मानता है, अजीब अपना हाल है, है। फिर यानी अजीब आला हाल हज़रत है। को मैं मान क्या लो तो कह रहा हूँ, सारे कुफ्र देखिए माफ, इस सारी तरह मैं बात नहीं गुस्ताखियां करता, माफ, इस तरह मैं बात नहीं सारी करता। खताएं माफ। आप जो है पहले ये बताएं तभी उसने बात अपना होगी, मीलाद वरना नामा बात नहीं होगी। पढ़वाया, वो क्या हुक्म है जो अपना मीलाद सुनिए नामा सुनिए पढ़वा रहा है इलियास काजी? उसके ऐसा बारे में कीजिए, क्या हुक्म है जो ऐसा तलबिया बदले कीजिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की जगह लब्बैक अफ्तार के नारे लगवाए? ऐसा कीजिए, और आप जो जो देवबंदी है के एक आध माने तो शिया जन्नती से है, शादी जो करवा देवबंदी को लीजिए, जन्नती एक माने आध वो तो क्या हुक्म है? कादियानियों अब से आप शादी बताओ। कर लीजिए, अच्छा ये और बताओ, ना जो हो देवबंदी को जा करके जन्नती माने क्या हुक्म है? मैं जो कह रहा हूँ नहीं, पहले इससे अच्छा ये बात बताओ, जो देवबंदी को जन्नती माने क्या हुक्म है? मैं पहले जो नहीं, पूछ आप रहा ये हूँ वो जवाब पहले दे दो, जो बताइए, वरना बात देवबंदियों नहीं को होगी, जन्नती माने क्या हुक्म है? आगे बात ही नहीं होगी, क्योंकि मुझको नहीं, अब आप ये आपके बताओ बारे में पहले, शक हो आप गया, इसमें जवाब दो, जो क्योंकि देवबंदियों को जन्नती कितने माने क्या सरियल हुक्म है? वहाबी देवबंदी कट्टर पढ़ लो, सफर इबलीसी हैं, 27 लग में रहा पढ़ है लो, आपका फैजान रंग उसके सुन्नत में ऊपर पढ़ चढ़ा लो, हुआ है। लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग गए थे देवबंदी बरेलवी सबकी बख्शिश हो गई। ये आज अब अभी वो ज्यादा देर नहीं हुई इज्तिमा में, अभी जिंदा है, अभी लोग गवाह मिल जाएंगे, देवबंदी भी अहले हदीस की किताब, हम भी इसके इज्तिमा में आप गए थे। पहले ये सफर ये 27 फैजान सुन्नत में लिखा है, देवबंदी बरेली सब आप गए थे, फौरन फोन रख दीजिए, सबकी बख्शिश हो गई, जिसको अल्लाह के फोन रसूल रख का दीजिए, दीदार वरना हुआ आप उसकी पागल बख्शिश हो नहीं हुई। जाएंगे, आपको एडमिट ये कराना इलियास पड़ेगा। काजी लिखने वाला भी मौजूद है, क्या लग रहा है कि आप किताब हाथ में हो से चुके निकालने हैं, से क्या माफ हो जाएगा? लग रहा इसमें है कि लिखा आपका क्यों? दिमाग पहले इससे हाथ हो कलमा चुका है, पढ़वाइए, आपको तौबा एडमिट करवाइए, कराना जैसे पड़ेगा। आप हिफ्जुल ईमान की इबारत के पीछे पड़े हो, ऐसी इसने निकलवा तो दी, इतना मत लेकिन अब चीखिए, इसने वरना आपके निकलवाने गले के की बाद नस भी तौबा फट कहाँ की? जाएगी। कलमा कब पढ़ा? दोबारा से ईमान कब लाया? जिसने लिखा। आपको अरे लग रहा है इसने अपने देवबंदियों को घर जन्नती जाएंगे माना, तो मुंह इसने दिखाने अहले के हदीस को भी लायक जन्नती नहीं माना। बचेंगे। क्या इसके इज्तिमा में आपको लोग देवबंदी नहीं कुछ गए और थे? समझने इज्तिमा में लगेंगे देवबंदी कि नहीं ये गए तो थे? क्या अशरफुल बरेलवी नहीं गए थे? मखलूकात से क्या कहाँ अहले से हदीस जो है नहीं गए दूसरा थे कुछ इसके हो गया। इज्तिमा में? लग रहा आंधी के है कब्रिस्तान में लिखा है सफर 27 में फैजान सुन्नत में, जितने लोग गए सबकी बख्शिश हो गई, और अल्लाह के रसूल का जिसको सांस ले दीदार हुआ लीजिए, उसकी सांस ले बख्शिश लीजिए, नहीं वरना हुई। आपका इलियास काजी इंतकाल ना लिखने हो वाला बोल, जाए, वरना इंतकाल ना हो जाए आपका। सांस वांस ले लीजिए इलियास आप। काजी तो माफ है, वो इनका बुजुर्ग है, इसलिए कि आला हजरत को मानता है, क्या है कुछ भी खड़े खड़े पेशाब करे, क्या है हराम खोरी करे, वो सब माफ है, क्या है ज़कात सुनिए दे, क्या है सदके दे, क्या है खैरात करे, क्या है झूठी करामात से बनवा, बस आला हजरत को मान ले। आला हजरत इनका दीन ईमान है, मैं हकीकत बताऊं। अगर आला हजरत को मान लो आप, तो आप खड़े खड़े पेशाब करो, लोडियाबाजी करो, लोडेबाजी करो, सब माफ है। आप बात करेंगे कि वो ज़कातें ले रहा, सब माफ है इनके नजदीक। वो झूठी झूठी करामतें बनवा रहा है, अल्लाह के रसूल की शान में खुली खुली गुस्ताखी कर रहा है। सांस कि तो अल्लाह ले के रसूल लीजिए खड़े हो, ये आप, बैठा हुआ है, सफाई 31 में लिखा है फैजान सुन्नत में, अल्लाह के रसूल सांस खड़े ले हो, ये बैठा लीजिए। हुआ है खाने काबा में, इलियास काजी किताब असल में लिखने वाला आपको यही है। तकलीफ कुछ और है, आपको तकलीफ कुछ और है, लेकिन नहीं आप वो तो बता नहीं रहे हैं। आपका है तो कह दो, आला हज़रत को मानता है इलियास काजी, हम तो उसे वली मानेंगे। ये बताइए कि आप बात करना चाहेंगे कि नहीं बात करेंगे? मानो साहब बात करेंगे कि सही से बात करेंगे कि रखूं? आप तो आला हज़रत को मानने वाले को जन्नती मानते हो, जो नहीं माने थे जहन्नमी नहीं मानते, सीधे कह दो आप। बात खत्म हो गई आपकी? कह दो कि हाँ आला हज़रत को हम मानते भी नहीं मानते, साफ कह दो। अरे हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ते हो? आगे और भी शिया की तरह अली वली अल्लाह जैसे वो पढ़ते हैं, आगे आला हज़रत वली अल्लाह पढ़ने लग जाओ, बस खत्म हो गया बात। हम सुन रहे जो हैं, दिल में है वो जाहिर कर दो, अभी तो दिल में है ना, जाहिर नहीं कर रहे, जाहिर कर दो, खत्म। इसमें अंदर छुपाने की क्या बात है? कह दो कि हाँ बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम आला हज़रत वली अल्लाह, बस। पागल पता नहीं कहाँ से। सहाबा किराम को तो नाम के लिए आप मानते हो, अहले बैत अतार का तो आटे में नमक के बराबर जिक्र करते हो। कभी पूरी दुनिया में जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं हुआ, जश्न इमाम बाकर नहीं हुआ, जश्न इमाम जाफर नहीं किया बरेलवी ने। और आलात के नाम के लाखों जलसे हो गए, हजारों जलसे हो गए, हज़ारी मियाँ के नाम के जलसे हो गए, मुफ्तियाँ के नाम के जलसे हो गए, लेकिन पूरी दुनिया में आज तक जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं हुआ। इन बरेलवी ने नहीं किया, ना अमेरिका में, ना अफ्रीका में, ना इंग्लैंड में, ना इंडिया में, न जश्न इमाम बाकर ने किया, न ये तो माँ के शिया करते हैं। शिया का इल्जाम लगा के कौम को धोखा दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। जैसे सिद्दीक अकबर भी नहीं करते, सिर्फ उदयपुर के लोग करते हैं, वहाँ के सुन्नी मुसलमान बहुत कट्टर है, वो करते हैं। ये तो इनका अकीदा हो गया। उदयपुर वाले भी एक दिन समझ जाएंगे कि यार वाकई में धोखा दे रहे हैं बरेली वाले। कभी जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्यों नहीं करते पूरी दुनिया में? जश्न इमाम बाकर क्यों नहीं करते? जिनका इल्म देखे इमाम आजम हैरान हो गए कि फरमाया था मैं इनके खिदमत में 2 साल न रहा होता तो बर्बाद हो जाता। अब बताइए, मुफ्ती अहमद रज़ा साहब बनारस के, इनका ये अकीदा है कि मक्के शरीफ मदीना शरीफ में कोई भी मुसलमान नहीं, इनका ये अकीदा है। जो सहाबा किराम की, बताओ क्या ऐसा हो सकता है?
कभी भी नहीं हो सकता। देखो हमारे साथ चांद साहब बैठे हैं कपड़े वाले, ये मकनपुर से मुरीद है, ये भी कह रहे हैं कभी भी नहीं हो सकता ऐसा है। हो सकता? देखो कह रहे हैं कभी नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं मुरीद है वही मकनपुर से, कह रहे हैं कभी नहीं हो सकता। चांद साहब ये सरपंच है हमारे, कह रहे हैं कभी नहीं हो सकता ऐसा कि वहाँ काफिर आ जाए मक्का शरीफ। अरे कभी घूमने फिरने कोई पहुंच जाए भूला भटका हुआ, एक अलग बात है, ऐसे तो भूले भटके कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसे तो बरेली में योगा हो गया मंदिर इस्लाम में, देवबंद में मुशायरा हो गया, वो औरत ने पढ़ा लेडीज ने पढ़ा, वो सब फालतू बातें हुई। देवबंद में आलिमों ने उसकी भी वकालत की, ऐसे ही बरेली के आलिमों ने योगा की वकालत की। देवबंद में इंदिरा गांधी आई थी, तो बरेली में सोनिया गांधी आई थी बाकरगंज में। वो बाकरगंज वाला तो बहुत बड़ा खबीथ है, वो तो इलियास काजी की पूरी पूरी हिमायत करता है। वो तो आला हजरत के नाम पे कलंक है, उनकी खानदान का आदमी है जो इलियास काजी का मुरीद हो चुका है, लगभग मुरीद हो चुका है। इलियास काजी उसका मुरीद नहीं, वो इलियास का मुरीद हो चुका है। जैसा दे दिया वो 10 लाख 20 लाख और कुछ ना कुछ और उसमें सामान दे दिया वो इलियास ने, बस। वो तो सारे वो भी नफ्स परस्ती के हालात भी समझ लेते हैं कि ये आदमी नफ्स परस्त है या किस तरह का है। वो तो उनके पास एक से एक मनोवैज्ञानिक लोग मौजूद हैं, वो तो पूरा पढ़ लेते हैं, चेहरे से समझ लेते हैं ये आदमी इस ख्याल का है, उसको ये चीज दे दो, जो जिस ख्याल का हो उसको वही चीज ला के पेश कर देंगे सामने। ये इलियास काजी के मानने वाले, वो तो उनके पास दुनिया भर का पैसा है, ज़कात है। वो तो कुतुब पाकिस्तान मुनाज़िर एशिया हज़रत मौलाना कारी हनीफ कुरैशी साहब ने इसकी पोल पट्टी खोल दी तो लड़खड़ा गई पूरी दावत इस्लामी, लड़खड़ा गई दुनिया की, उनके पैर लरस चुके हैं। अभी मुफ्ती आजम पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया दावत इस्लामी सुन्नी मस्जिदों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, उनका बयान आ चुका है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर, आप दावत इस्लामी वाले सुन्नी मस्जिद में दखल अंदाजी करके अपना इमाम नहीं रखेंगे, कब्जा नहीं करेंगे। ये तो धीरे धीरे पैर जमा के फिर कब्जा कर लेते हैं। पहले खूब ज़कातें खिला रहे हैं, ज़कातें सस्ते, वो अरे वो हीला शरई करके, हीला बहाना करके के साथ ज़कात जायज़ है, हमने बच्चे पढ़ा रहे हैं, 50 बच्चे रख लेते हैं, बेवकूफ़ बनाने को 50-60, फिर मदरसे ये वो हीला करके और फिर बांटना शुरू करते हैं अपने आलिमों को, दलालों को 50-50 हज़ार देना तनख्वाह था। वो पूरी दुनिया से चंदा कर रहा है, न जाने कितना पैसा, बिल्डिंगें की बिल्डिंगें खरीद रहे हैं पूरी दुनिया में। तो इनके पास तो न जाने अमेरिका से ताल्लुक है, इंग्लैंड से, कहाँ से एजेंसी इनको पैसे दे रही है दावत वालों को। और ये लड़के क्यों रखते हैं छोटे छोटे? अभी अजमेर शरीफ में एक इमाम ने हरामखोरी की लड़के के साथ, वो लड़कों ने मिलकर फिर मार डाला। ये दावत इस्लामी वाले छोटे छोटे बच्चे क्यों रख रहे हैं मदरसे में? क्या ये पूरी निगरानी रखते हैं? हजरत मौलाना शेख अबराउल साहब हरदोई वाले थे रहमतुल्लाह अलैह, वो उनके यहाँ ये निजाम था हरदोई में, कोई छोटा बच्चा बड़े बच्चे कमरे में जाएगा, बड़ा बच्चा छोटे बच्चे कमरे में जाएगा, तो कोई उस्ताद बच्चे से खिदमत नहीं ले सकता है किसी भी तरह की। ये सख्त निजाम था हरदोई में। हजरत मौलाना शाह अबराउल साहब हरदोई वाले जो हजरत शेख अशरफ अली थानी साहब के खलीफा थे, ये आज निजाम है मदरसों में कि चेक कर रहे हैं रात में कि बच्चा क्या कर रहे हैं, उस्ताद क्या कर रहे हैं बच्चों। हम तो कह रहे हैं कोटा में जयपुर में हर जगह चेक करें दावत इस्लामी वाले मदरसे वालों को कि रात में क्या कर रहे हैं, हरामखोरी तो नहीं कर रहे बच्चों के साथ। हमें चाहिए शहर वाले इस पर जिम्मेदारी लें, नहीं तो जैसे अजमेर शरीफ का इमाम हरामखोरी कर रहा था ऐसी मुरादाबाद में एक जलालपुर बस्तियों में था, वो लड़की लेके भाग गया, मेरे सामने की बात है, मैंने देखा उसको, लड़की लेके भाग गया। पुसवाड़ा रामपुर में लड़की लेके भागा, मेरे एक वहीं पर भूकापुर में इमाम था, ये स्वार के पास, वो लड़की लेके गए, हरामखोरी कर रहा था। ऐसे कितने इमाम है जो हरामखोरी कर रहे हैं लड़का लड़कियों के साथ में। अब तो चाहिए कि शहर वाले जयपुर, कोटा और जोधपुर, उदयपुर, ये सब लोग सख्त निगरानी करें जहाँ ये लोग मदरसे चला रहे हैं लड़का लड़कियों के। क्यों चला रहा हो आप कौन होते हो? तो इसके अलावा शहर के लोगों को जिम्मेदार रखें, बूढ़े लोगों को, कि रात में भी चेक करें, दिन में भी चेक करें। 3 आदमी तनख्वाहदार मुकर्रर करने के बाद फिर इनकी चेकिंग करें, नहीं तो ये हरामखोरी करेंगे बच्चों के साथ। ये तो बहुत पकड़े जा रहे हैं साहब। दावत इस्लामी वाले ने एक ने हांगकांग में हरामखोरी की थी, हांगकांग में, और भी जगह इनके बहुत वाकयात हैं। ये तो अंडरग्राउंड इनके आदमी निगरान होते हैं। ये तो अपने आदमी की कमी खुद छुपा लेंगे कि चलो अपना आदमी बताओ मत दावत इस्लामी बदनाम होगी। हम तो कह रहे शहर का आम आदमी उस पर निगरान हो, 2-3 हो, 3 रात में अलग दिन में अलग हो, रात दिन जाए वहाँ, कभी भी जाए, उनको इख्तियार हो, कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, आपके कमरे को चेक कर सकते हैं। कमरे में कोई ताला नहीं लगाएगा, वो कमरा बंद नहीं होगा, उसमें खिड़की होना चाहिए। जैसे एक जमाने में दारूल देवबंद में भी निजाम था कि कमरे में खिड़की रखते ताकि लड़का कोई हरामखोरी न कर सके। हरामखोरी करना वो शैतान सवार हो जाता है ना साहब। देखो कहीं भी शैतान सवार हो जाता है क्या? एक ने तो सफरनामा भेजा था, देवबंद बरेली सब मदरसों में गया था, कहा कि उस मदरसे में ऐसा होता है, देवबंद वालों में ऐसा होता है, बरेली के मदरसे में भी हो रहा है। लड़कों को बहाने के तौर पे, खिदमत गुजारी के तौर पे रख लिया, कोई चाय बनाने पे, कोई मालिश करने पे, बात हरामखोरी भी हो जाती है, दूसरी शैतान सवार हो जाता। इमाम गजाली ने लिख रहा है कि अमृत के साथ में 18 शैतान होते हैं, अमृत के साथ में। हाँ,
تو یہ لوگ کہاں ایسے پرہیز کرنے والے، حرام کھا رہے ہیں، زکاتیں کھا رہے ہیں، صدقے کھا رہے ہیں، تو ان کا نفس تھوڑی قابو میں آئے گا، حلال تھوڑی کھانا ہے۔ ابھی یہ جائز کر لیا زکات صدقے، قرآن میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقیروں کے لیے، مساکین کے لیے، اور جائز کر لیے دعوت اسلامی والوں نے 2-4 بچے رکھ کے 10-50 بچے رکھ کے جائز کر لیے۔ ارے شہر کوٹہ میں دیکھ لو، کوئی بھی آدمی آٹا بھیج دے گا پورے مہینے کا، کوئی بھی چاول، کوئی بھی دال، کوئی بھی دلیا، کوئی بھی تیل، صابن، سب خرچے بھیج دیں گے الگ سے، اور یہ چندے الگ ڈبوں کے ڈبے، اور گھر گھر جا کے چل دی۔ ارے کیا ان لوگوں نے تماشے ناٹک بنا رکھے ہیں۔ الیاس قاضی کہہ رہا ہے کہ لکھا کتاب میں اللہ کے سو کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے۔ الیاس قاضی کہہ رہا ہے جو میری دعوت اسلامی سے ٹکرائے گا برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو مفتی اختر رضا صاحب ازہری میں کب برباد ہوئے؟ انہوں نے تو سخت مخالفت کی تھی بریلی والے مفتی اختر رضا صاحب نے۔ یہ اس نے بول رہا ہے الیاس قاضی کہ جو میری دعوت اسلامی سے ٹکرائے گا برباد ہو جائے گا۔ کب برباد ہوئے مفتی اختر رضا صاحب؟ اور کب برباد ہوئے مفتی کلیم حنفی صاحب؟ وہ بھی تو بولتے ہیں خوب۔ کب برباد ہونا مفتی منیب الرحمان؟ کب برباد ہوئے قاضی حنیف قریشی صاحب؟ انڈیا کے سینکڑوں عالم خلاف ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب جامعۃ الازہر میں بہت بڑے مقرر ہیں، طوفانی مقرر ہیں، وندے بھارت کی طرح سے تقریر کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں وہ کب برباد ہوئے؟ حضرت مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب بہت زبردست مقرر ہیں، اور میرے استاد ہیں بریلی میں حضرت مولانا مفتی صالح صاحب، زندہ بزرگ شخصیت ہیں، ان سے سب مرید ہو جائیں بریلی جا کے۔ یا حضرت مولانا حسن رضا صاحب سے تمام جوان مرید ہو جائیں، جتنے بوڑھے ادھیڑ عمر کے ہیں سب مفتی صالح صاحب سے مرید ہو جائیں۔ یہ بھی اچھی ہستی ہیں حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے میں تو یہ مانتا ہوں کہ دیوبند بریلی ایک پارٹیشنوں میں مسلمانوں کو بانٹا ہے، جیسے بھاجپا ہے، کانگریس ہے، سپا ہے، بسپا ہے، جماعت اسلامی موجودی۔ ارے بھائی ایسے کون گستاخی کرتا ہے؟ گستاخ رسول کو جان سے مار ڈالے گا آج بھی مسلمان، دیوبندی مار ڈالے گا، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، موجودی چاروں فرقے والے مار ڈالے گا۔ فرقہ ایک نام ہے، فرقہ تو قادیانی ہے، شیعہ میں 32 فرقے ہیں۔ ابھی جن سے میری بات ہو رہی ہے مفتی احمد رضا صاحب بنارس کے، ان کے پیر و مرشد حضرت مولانا صوفی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو دیکھا للت پور میں آئے تو بلائے تھا، ہم نہیں بلایا جلسہ کرا۔ وہ جب غائب ہو گئے تھے تو دیوبند والے کے گھر میں مل گئے تھے جب وہاں پر بہار میں، تو اب ان پر الزام لگایا تھا بستوی صاحب نے کہ دیوبند والے کے گھر میں کیوں ملے بہار میں، وہاں کیوں کھایا اتنے دن رہ کے، کافی دن وہیں کھایا تھا دیوبند والے کو۔ وہ تو اس بات کو ان کا پوتا خود مان رہا ہے کہ ہاں دیوبند والے کی مسجد تھی وہاں پر جہاں رکے ہوئے، اب وہی نمازیں پڑھ رہا ہے، بعد میں آگے پھر اب یہ کہتے ہیں مجذوب کے اوپر، مجذوب سے تو پھر مرید بھی نہیں ہو سکتے۔ چلو ہم نے مانا کچھ دماغی کچھ وہ ہو گئی تھی ان کو، تو مفقود الخبر ہو گئے۔ بہت اچھے صوفی آدمی تھے، نیک آدمی تھے صوفی نظام الدین صاحب، ہم نے خود بلایا ان کو، ہماری ٹیم نے، یعنی میں نے دل سے کرایا، یہ ان کے مرید ہیں۔ اب یہ کافر مان رہے ہیں عرب والوں کو، یہ مان رہے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف والے مسلمان نہیں ہیں، وہاں کے امام بھی، وہاں کے مؤذن بھی، وہاں کے جتنے لوگ ہیں صحابہ کرام کی اولاد کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے ان کے فتوے سے کہ کہہ رہے ہیں وہابی ہیں، وہابی کا نکاح نہیں ہوتا، یہ مانتے ہیں کسی کا نکاح۔ وہابی کیا، وہ ایک نام رٹ رکھا ہے وہابی، وہ تو ابن عبد الوہاب تھا، کب کا مر چکا، 150 سال پہلے مر گیا وہ تو، ابن عبد الوہاب نہیں تھی، اسے دیوبند والے بھی نہیں مانتے۔ حضرت شیخ حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے شہوت ثاقب، اس کی بہت بقیہ ادھیڑی ہیں۔ حضرت مولانا شیخ حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بہت بڑے بڑے عالم ہیں۔ حضرت مولانا شیخ نصیر الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث سے دیوبند کے، ان کے شاگرد تھے، ان کے 20,000 عالم شاگرد ہیں، ان کے شاگرد 20,000 ہیں، قریب 20,000 یا 12,000 ایسے ان کے بہت شاگرد تھے۔ شیخ الاسلام حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ خود ہمارے استاد حضرت مولانا قاری حاجی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، مفسر قرآن قاری حاجی حسن صاحب۔ یہ تو کیا ہے، وہاں کے سیدوں کو مسلمان نہیں مانتے بریلی والے، اور یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حاجی میں نماز پڑھ لے گا کافر ہو جائے گا، اگر مسلمان جان کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ لے گا کافر ہو جائے گا، یہ ان کا عقیدہ بریلی والوں کا۔ گمراہ کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ جمعہ بھی مت پڑھو، قربانی بھی مت کرو، قربانی کرو گے تو ان کو گوشت دو گے مسلمان سمجھ کے، تو یہ اتاری دعوت اسلامی والوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ان کو مسلمان سمجھ کے گوشت دیا الیاس قاضی کے ماننے والوں کا تو تمہارا قربانی نہیں ہوگی، تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اگر گوشت شوٹ دیا وہاں پر ذبح کر کے ان کو ہی واپس کر دیا کہ تم رکھ لو گوشت، مسلمان سمجھ کے دے دیا، تمہاری قربانی نہیں، تم اسلام سے بھی نکل گئے، یعنی حج بھی نہیں ہوا، تم کافر ہو کے آ رہا ہو وہاں سے، بتاؤ۔ جبکہ کتنا بڑا درجہ حج کر کے آتا ہے، تو یہ الٹا بتا رہا ہے کہ بلکہ اسلام سے خارج ہو کے آئے گا، عرب سے جب آئے گا حج کرنے کے بعد تو حج ہی نہیں ہوگا، وہ اسلام سے خارج ہو کے آئے گا، نعوذ باللہ۔ یعنی نماز پڑھ لی تو کافر، نہیں پڑھی تو کافر، ان کے حساب سے۔ ارے روٹی سے ان کو تو صحیح مکن پور والے ہی کرتے ہیں، مداری لوگ، مداری بہت کٹر ہیں، علماء حضرت مولانا مفتی اعظم بہت کر رہے ہیں کہ نہیں، حضرت مولانا مفتی اسرافیل صاحب مفتی اعظم مکن پور، ان کی بقیہ ادھر دیتے ہیں، اور بدایوں کہ حضرت مولانا شیخ حزام میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی موجود ہیں،
कुतुब बदायूं हजरत सालिम मियां साहब के लड़के हैं, इनकी बकरियां उधड़ में, वो नहीं मानते थे अल्लाह हज़रत को मुजद्दिद बलाई के। तो इसी तरह से सुल्तानुल मुजाहिदीन हजरत मौलाना सैयद सिफ्तैन हैदर मियां साहब कुतुब मारेरा रहमतुल्लाह अलैह से ये कह रहा हूँ कि बरेली वाले अपने आलिमों को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, तो मैं रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूँ। ये कहते हैं साहब रहमतुल्लाह नहीं कह सकते, तो क्यों नहीं कह सकते जिंदों को? जब तुम खैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हो तो हम तो जिंदों को रहमतुल्लाह तो कह रहे हैं, दुआई तो दे रहे हैं कि अल्लाह की रहमत उन पर, कि साहब वो जायज नहीं है। तो खैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कैसे जायज हो जाएगा? ये साहबा की पहचान है, जैसे एक स्टार पुलिस वालों की पहचान होती है, स्टार वाला अलग, 2 स्टार वाला अलग, 3, सभी 4 स्टार लगाएंगे तो पहचान क्या रही पुलिस डिपार्टमेंट? पहचान है अंबिया किराम के आगे अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के आगे अलैहिस्सलाम, अहले बैत इमाम हुसैन के आगे अलैहिस्सलाम, इमाम बुखारी ने लिखा, और साहबा के आगे रज़ियल्लाहु अन्हु, गैर साहब आगे रहमतुल्लाह अलैह, और आम मुसलमानों आगे मरहूम। ठीक है साहब, मुफ्ती अहमद रज़ा साहब, शुक्रिया साहब, सुन रहे हैं क्या? बेचारे गायब हो गए, सुन सुन के उनका दिमाग पक गया। ये मुफ्ती अहमद रज़ा साहब बनारस के हैं, अमजदिया से शाद पारे में। तो जब इनके उस्ताद से मेरी बहस हुई थी, वो बात नहीं कर पाया मुहद्दिस से कभी ज़्यादा। भाई हक बात के सामने कौन आएगा? आप जैसे चौकड़ों से बात करना अपने आप को। अच्छा देखो साहब, अभी ये आप सुन रहे थे, हजरत सुन रहे थे, हजरत सुन नहीं रहे हैं आप मुझको लग रहा है अहमक बेवकूफ हैं। आप पैदाइशी बेवकूफ लग रहे हैं हजरत। आप वही कह रहा हूँ, पैदाइशी बेवकूफ लग रहे हैं। लग रहा है कि आप जबरदस्ती आ गए हैं, लग रहा है कि परवरिश जो है सही नहीं हुई है। हजरत साहब आपका मकाइद तो ठीक है, वही तो सोच रहा हूँ कि मैं कितने मखरज आपके बन गए। मिजाज तो ठीक है आपके मकाइद। आप जैसे बदतमीज अहमक हम तो आपसे बदखोम से बात करना बेवकूफ। मकाइद तो ठीक है।